उठां वाले टुर जाणगे फिर लपदी फिरेगी हाणी नी ससिए जागदी रही रात अज दी नींद न माणी नी उठां वाले टुर जाणगे। Thank you very much for tuning into BRICS Asia TV. It gives me great pleasure today. Once again, I've met this wonderful living legend before, and it gives me a great pleasure to welcome an audience with a one and only. He's had over 4,000 songs recorded, over 400 albums, belongs in the Guinness Book of Record. He's a pride of Pakistan, but I'd say he actually is a pride of Asian music wherever they are. So ladies and gentlemen, please put your hands together for the great Atullah Khan Sahab. सर जी एक बार फिर तुहानू जी आया नू बहुत शुक्रिया। अपनी दूसरी मुलाकात है मेहरबानी। और पहली मुलाकात ते मैं वादा किया सी कि हाँ जी जरूर तुसी कह सके सुखी साडे भी वीडियो वगैरह और जान के मे भी जो कि शायद साडी कोई डाइंग आर्ट है इसनू भी मोड़े लिया जाए। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कीड़ी दे घर नरैन आए हो ते होर दसो तुहाडे की हाल चाल? पहले नालों बेहतर। पहले की गल हुई सी? कुछ नहीं। अच्छा स्टूल ते बैठे पिया सी हुण एडिटिया चेहरा मैं तुहाडे वास्ते लेके आया। हां ते पहले नालों मेरे उर्दू कुछ नहीं बेहतर हुआ। ठीक है जी मैं प्रैक्टिस काफी की। मेरी अंग्रेजी बेहतर नहीं है तेरा बेहतर हो गया। क्या बात है शुक्रिया। और तुसी मैनूं कहंदे सी की कहंदे जी? ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੁਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੀਤਾ ਸੁਰਾਈ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਰਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ मोहतरम दोस्त बैठे हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ। ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਬੀ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੌਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਡਗਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਤਾ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ 25 30 40 ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2 ਮਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਦਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵੋਕਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। लेकिन हुण तो तुसी ट्रैक बना लो तो एक गाना 1.5 साल लगे रहो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा। जी जी यानी कि उदों कट वट नहीं सी हुंदी? नहीं उदों नहीं सी। जी जी जी। और जदों तुसी इस दौर दे संगीत दौर दे विच अपनी पहली मुलाकात दे विच तुसी दस्सिया कि जदों तुसी संगीत दे विच आ गए ते फिर तुसी ABC संगीत दी सिੱਖੀ और बड़े बड़े लोकां दे नाल तुहानू? नहीं ABC तो मैनू हाले भी नहीं आंदी जी। बड़ा मुश्किल जवाब है। बड़ा एक वसी समुंदर है म्यूजिक ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪਠਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ? ਬਿਲਕੁਲ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੰਗੀਤ ਕੀ ABC ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਪਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਾਨ के मुकाम पे बैठे हो? नहीं, ये अल्लाह की करम नवाजी है कि वो ज़रूरी नहीं है कि तुसी किसी उस्ताद को सीखो, बाज़ दफ़ा वो खुद करम नवाजी कर देंगे। जी जी जी। टैलेंट होवे तो उन्हें पॉलिश करने वो आप ही हालात साजगार बन जाते हैं। जी जी जी। मैं फिर अच्छे असातिज़ा नाल काम किया, उन्होंने नाल उठा बैठा तो फिर है कि थोड़ा बहुत रूह राजी कर लईदा। नहीं, रूह राजी तो आई थिंक ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਸਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਲਬਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। अल्लाह की करम नवाजी कि तुसी मैंने पसंद कीता। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਸ ਮੂਸੀਕੀ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਜੀ। अच्छा वीडियो बन गया, लोगों ने देख ले जी। शायरी बहुत घट लोग कर रहे हैं इस दौर के विच। और जो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਲਬਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? अच्छी शायरी और आम फहम गल करनी चाहिए। अपने प्रॉब्लम से हर शायर बयान करते ही है, किसी भी जुबान का शायर हो, लेकिन उसको अल्फाज का रूप देना वो बाद लोगों का काम होता है, हर बंदा नहीं कर सकता। वो वास्ते मौजू लफज या फिर जिस तरह गायक गाँदा है वो वास्ते मौजू तर्ज जी उसके मिजाज में समझते हो, गज़ल गीत जो भी तुम कर रहे हो, तो ये ना हो कि गज़ल के अशार कुछ होर ने तो म्यूजिक कुछ होर कह रहे, वो भी फिर सुनने वाले अपील नहीं करेगा। इस वास्ते उन्होंने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पैंदा। तो मेरे जमाने तो बड़े अच्छे शायर सन, जिवें कि अहमद फराज साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब और साडे इलाके के फारूक रोखड़ी साहब सन, और मुनव्वर अली मलिक साहब सन, आडा खान साहब सन, मजबूर ईसा खेलवी साहब सन। और इन लोगों की शायरी विच की केड़ी चीज सी यानी कि जो कि तुहानू खिचदी सी उन्हां वाल? ज़ाहिर है अपने इलाके दी महरूमियां, अपनी जिंदगी दी मायूसियां और जो चीज़ सानू हासिल नहीं होती, जाहिर है असीं उसे ते ही रोना पिटना होंदा है जी, शायरी दे विच या गायकी दे विच। कि शायरी दे विच खान साहब हकीकत लिखी जानी चाहिए? तो तुसीं देखो जेड़ा शायर हकीकत के करीब लिखता है वो ज्यादा मकबूल होंदा है, या वो उस कैफियत चो गुजरता है तो वो शेयर करना, उस कैफियत चो ना गुजरा हो तो शायद मुश्किल हो जाए। जी जी जी, यकीनन उस कैफियत चो गुजरा होगा तो जिथे वो शेर। अगर कोई इश्क बारे लिखता उसनु इश्क होना चाहिए क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स उन्हें लाइना उन्हें अल्फाज़ां दे विच पाए, मतलब ये लिखण वाले ते डिपेंड करदा वो ओदे ज़हन च की है, तुसीं किस तरह लैंदे हो, वो थोड़ी अपनी अप्रोच, थोड़ा अपना विजन जी कि मैं किसे मेरा राबता किथे हो रहा, तुसीं राबता किथे होड़ जोड़ लैंदे हो, तो थोड़ा अपना सुनने का तरीका, समझ का तरीका। तो जो शायर ये तो वही जानते कि उसने किस कैफियत लिखी, जी जी, मैं किस कैफियत गाई, तुसीं किस कैफियत सुन रहे हो, ये मुख्तलिफ प्रांत। थैंक यू। खान साहब आप शायरी की गल करते रहे थे, थोड़े जे साडे नाल कुछ बोल तुसीं शेयर करोगे शायरी के तौर पर, तुहाडी कोई मनपसंद शायरी ये सन भी मालूम होवे? मैं आपको एक गज़ल के पूरी तो नहीं मुझे याद इस वक्त, लेकिन कुछ शेर मैं आपकी नज़र करता हूँ, गा के सुनाऊँ या वैसे? जैसे आपकी मर्जी। पहले वैसे सुन ले फिर गा। हाँ, क्या बात है। क्यों तू अच्छा लगता है जी, मैं आप नहीं
मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मैंने उसको लिखकर भेजा, मिलने की तदबीर करो, उसने लिखकर भेजा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। वही सुना दो जो आप अभी कह रहे थे। जैसे आपकी मर्जी। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, जो न करना था वो भी कर डाला, हमने जालिम तेरी खुशी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। अवश्य अपनी गलबात हो रही सी कि ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਉਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਫੀਅਤ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਧੁਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕੀਤੀ ਆ ਓਵਰ 7 ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਓਵਰ 4000 ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੋ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਫੋਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत घट बच्चे ने जो हिट हो रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यह हुई है कि एक तो मेहनत का वो मयार नहीं रहा जो उस वेले से। हुण बच्चे मेहनत घट करते हैं क्योंकि बड़ी आसान अप्रोच है, चैनल्स तक, मीडिया तक, पूरी दुनिया जाए कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, फेसबुक ਤੇ कुछ ट्विटर वगैरह। है ट्विटर अकाउंट? नहीं, मैंने तो समझ ही नहीं किस तरह चलाई दे। नहीं, फेसबुक भी नहीं? मेरा बेटा चलाता है। क्या बात है।
और खान साहब ये मीडिया वगैरह, ये टेलीविजन चैनल्स वगैरह, ये रेडियो वगैरह संगीत के वास्ते चंगी चीज़ है तुहाडे सोचण के मुताबिक, जान कि स्पेशली वीडियो का दौर, और तुसीं भी वीडियो दे विच मैं अर्ज कीता कि वक्त के नाल नाल इंसान दा ज़ौक व शौक बदलता रहंदा। ठीक है, हुण इतना वीडियो दा काम आ गया, ठीक है, लेकिन साडा सानू ते अपना दौर चंगा लगदा। जी जी, पर हुण तुसीं वीडियो दे विच भी ऑब्वियसली मजबूरन अपना घरान मजबूरन करना पैंदा क्योंकि डिमांड है इस वेले मार्केट दी, वरना ते ओ जमाना चंगा सी, ओ दौर चंगा, ओ दौर पिछला दौर तुहानूं जानी कि ज्यादा पसंद सी। और तुसीं एक्टिंग भी वीडियो दे विच, आपां वीडियो दा जिक्र करदे और एक्टिंग दा जिक्र करदे हैं, तुसीं पहले तीन फिल्मां चार फिल्मां कीतियां, उस दे बारे दस्सो थोड़े, अपनी एक्टिंग दे बारे दस्सो थोड़े, क्योंकि तुसीं जवानी दे विच खुद हुण भी एक्टर लगदे हो, पर जवानी विच ज्यादा लगदे। नहीं, मैं एक्टर कदी भी अच्छा नहीं सी, बाद विच फिल्मां वेख के मैनूं बड़ी शर्मिंदगी होई है कि मैं की कीता है। क्यों? लेकिन वो दोस्ती ताल्लुक दे विच, जिस तरह साडे देशां दे विच हुंदा ताल्लुक है जी, तुसीं फिल्म बना रहे हो यार, आ थोड़ा जिन्ना रोल है मेरी फिल्म विच कर दे जी, ते ना ते अल्लाह ने दिता सी, तो प्रोड्यूसर ने समझा कि असीं ना वेच लईए, उन्हें फिर मुख्तलिफ हवाला नाल मेरे तक अप्रोच की, मैनू फिल्म विच लै गए जी, तो मैं औखे सौखे होके करते रही, पर जो एक तो कर दी, दो हो गई, 3 हो गई, बस चस्का पै गया जाने के। नहीं, मेरे नहीं चस्का पाया, फिर दूसरे दोस्त ने मजबूर किया भी तू इन्हां वास्ते कीती है, मेरे वास्ते भी कर। जी जी, केड़ा पार्ट नहीं तुहानूं जाने के उस दुनिया दा चंगा लगा कि फिल्मी? नहीं, मैनू तो म्यूजिक चंगा लग्या जी, ओदे यह है कि मैनू होर म्यूजिक नूं ज़्यादा करीब तो देखने का मौका मिला, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री की जेड़े शायरी, गायकी, अरेंजमेंट, रिकॉर्डिंग वो साडे नालों ज़रा मुख्तलिफ सी, तो वो तजर्बा होया। बाकी तो अदाकारी वाले पासों ते नहीं। अगर हुण कोई फिल्म दा ऑफर आवे, मैंने समझ आ गई, शायद की पता खान साहब हो सकता है अब तो पैसे कमाने का वक्त आया, हो सकता है कोई अच्छा डायरेक्टर होवे तो मेरे तो काम करा लवे जी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो नहीं करवा सकते। नहीं, वी लाइक खान साहब वीडियोस, डोंट वी, जो वीडियो दे विच एक्टिंग करदे हैं सारे, देखो कहंदे कि बहुत अच्छा तुहाडा वो पुराना मेरे बाबे जी दा हुक्का भी मैनूं याद आ गया जो तुसीं मंजे ते पए। अच्छा अच्छा, ये तो चीनू साहब दी शरारतां ने ना, हां जी हां जी, मंजा भी लभे उत्थे ते अच्छा मज्जां भी लभियां ने उत्थे, आसे पासे बन दित्तियां ने, अच्छा हुक्का भी लभ लियांदा। अच्छा जान के ठीक है, ये चीनो साहब इन्हां दे नाल करदे हैं भी इदां दे काम नहीं करना चाहंदा। और खान साहब तुसीं इंडिया दे विच, दिल्ली दे विच तुहाडा पहला शो होया, उस दे बारे दस्सो थोड़े, एक पाकिस्तान दे विचों जाने कि संगीत की सरहद पार करके तुहाडे एक आर्टिस्ट वास्ते कितना जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स सरहदां जो पै जांदियां, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान विच भी बड़ी मोहब्बत करदे ने, बड़ी इज्जत, बड़ा एहतराम है। दूसरी गल है कि हिंदुस्तान चूंकि मैं एक ही शो कीता जी 2 साल पहले जी, ते उत्थे मेरे फॉलोअर्स से बहुत सा, कई दफा दावत भी मिली, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं नहीं जा सके। लेकिन हुण मैं गया हूँ पुराना किलिया दे ग्राउंड विच होई शो होया सी, लेकिन बहुत मुहब्बत, बहुत इज्जत और बहुत एहतराम उन्होंने दिता, मैंने बड़ा मान दिता जी, और बड़ियां अच्छियां यादां मैं उत्थों लैके आया जी जी। वेखो हुण इंशाअल्लाह फिर कोई सूरत बनी जी, तो मेरा दिल करदा अमृतसर वास्ते, चंडीगढ़ वास्ते, पंजाब साडे पिंड, तुहाडे पिंड साडे पिंड आयो, तुहानूं दुੱਧ पिलावांगे, सब कुछ तुहाडी चंगी सेवा करांगे, सराय दे नाल इंशाअल्लाह। खान साहब जिहड़े कि जदों आपां जिक्र शेरो शायरी दा करदे हो, तुहाडे तो होर भी सी बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, जदों तुसीं एल्बम करदे हो, जान के तुहाडी एल्बम पिछे जे आई है, उदों तुहानूं एडवाइस लैनी पैंदी कि यंग जनरेशन वास्ते, जिहड़ी आउण वाली पनीरी वास्ते कुछ लाइट शायरी, एक आर्टिस्ट बन के तुहानूं मजबूर होना पैंदा इस गल? नहीं, मैं कभी मजबूर नहीं होया, मैनूं जो पसंद आया मैं वही कीता, जिहड़ा म्यूजिक डायरैक्टर, म्यूजिक अरेंजर मैनूं पसंद आया मैं उहदे नाल ही काम कीता, या मैं वेखिया कि जिहड़ा मेरे मिजाज नूं समझदा, मैं अपने मिजाज तो हट के गल करन लगा ते अच्छी नहीं लगेगी, ना सुनने वालों नूं पसंद आएगी, ना वेखण वालों नूं पसंद आएगी, सो मैं अपनी मर्जी की। लेकिन ये वेखिया भाई अज के दौर किहड़े अच्छे दोस्त काम कर रहे हैं, उन्होंने नाल काम किया जाए। हुण भी जिहड़ा वीडियो बनाया, गाना तो मेरा बहुत पुराना सी,
ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੀਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਸ਼ਾਨ ਪਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇੱਥੇ ਡਰਮ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਰਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੀਨੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਲੱਭੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟ ਹੈ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर सदा आवे प्लेबैक सिंगिंग वगैरह हीरो हिंदुस्तानी वास्ते गाए अच्छा सांवल 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 चेहरा चमकता तेरा तुझको जो चांद तक ले आगे भूल गया मुझे हीरो हिंदुस्तानी के लिए मैंने गाया जी 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 उस वक्त ये बहुत को 10-12 साल पहले की बात है ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ नहीं मैं गया सी उत्थे बॉम्बे अच्छा हाँ उत्थे होई सी रिकॉर्डिंग जी 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 फिर वापस नहीं उस तो बाद नहीं मौका मिला बाद में कुछ हालात ऐसे रहे कि नहीं जा सके जी 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 कोई स्पोर्ट्स का कोई शौक कोई कबड्डी का कोई कुश्ती का कबड्डी कुश्ती कबड्डी कहते कि पहलवानी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ जवानी वेले मैं तो देखे यार लंबे लंबे बाल जिदा गंगिस खान वर्गियां मुछां उदो खान साहब किसी ने लागे नहीं लगन दिंदे होने तुसी कोई भी गेम नहीं कर सके जी बस गाने दा शौक सी शुरू और क्रिकेट में तुसी काफी फॉलो करदे क्रिकेट नु हां देखदा मैं देखन दी हद तक बड़ा शौक और केड़ी टीम ने सपोर्ट करदे हो कौन सी टीम ने सपोर्ट करदे हो टीम जेडी अच्छा खेलेगी क्या सियासत सपोर्ट करना चाहिए सियासी आंसर दिता तुसी नहीं सियासी नहीं बाहर अगर अच्छा खेलेगा तो ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਗਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨਾਲ नुसरत फतेह अली खान साहब नाल मेहदी हसन खान साहब नाल उठन बैठना नसीब होया कोल तो सुनन दा देखण दा भी खान साहब नाल ते खैर मैं बड़ा काम कीता चूंकि असी इक्को ही कंपनी तो इक्को ही वक्त च असी काम शुरू कीता 77 दे विच फैसलाबाद तो रहमत ग्रामोफोन हाउस दी कंपनी सी उहदे तो असी दोवां ने इकट्ठा शुरू कीता फिर पहले तो खान साहब कवाली च माशाअल्लाह उन्होंने अपना मुकाम से फिर सोलो परफॉर्मेंस आए तो फिर अल्लाह ने होर नाम दे जी 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਤਾਇਆ ਪਲ ਜਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ जी जी सुनाओगे दो बोल उसके नहीं याद नहीं अच्छा ठीक है और मैडम जी हुनी प्लेबैक पाकिस्तान दे ओनली प्लेबैक सिंगर तरन्नुम मेनू जान जिन्हां बल्कि तरन्नुम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਰਹੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਗਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਜੀ 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 और कुछ सुनाओगे कोई शायद कोई ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਐਨੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ Song ਫॉर द ਆਡੀਅנס ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੇਵਾ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਥੇਵਾ ਇਹ ਥੇਵਾ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਥੇਵਾ ਇਹ ਥੇਵਾ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਥੇਵਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੀ ਖਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਖਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਏ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨੀ ਚੰਨ ਜੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ
नी गोरे चिट्टे मुखड़े थे ए थेवा मुंदरी दा थेवा। क्या और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਨੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਐਲਬਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ इंशाल्लाह कोई वक्त मिले तो मैं भेजांगा थोड़े को। आज ही आए हो पाकिस्तान तो? हाँ जी बाकी आप ही पूछ लेना। हाँ जरूर जरूर पूछूंगा मैं जी। हाँ जी ऑब्वियसली उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜਨ ਕੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰਾਦਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਰ ਨੱਪੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਵਕਤ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਗੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਏ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੰਗੀਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤਾ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਸੰਗੀਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਸਕੀਨ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਯੂਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਔਰ ਰੋਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ? ਜਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੁਬਹ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਸੁਣਾਣਾ, ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਫ ਡੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋਰੀ ਸਭ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਸੀ ਸਿੰਗਰ ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਲਮੀ ਸਿੰਗਰ ਸਨ और बहुत अच्छा गाना था। उन्होंने का एक गाना बहुत मशहूर थी, मैं वो गाना सुना देता। वो गाना सी ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਭਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋੜਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ
अगर तू नहीं करेगा तो बहुत ज्यादती करेगा। सो मैं फिर उस दिन तो और जी पिताजी ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ना पिताजी ने फिर मैंने घरों कट दिता भाई तू फारे नहीं जब मास्टर ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ मास्टर दुनिया तो नहीं उस वेले मास्टरों का बड़ा एहतराम होता। अच्छा ठीक है बहुत एहतराम जी। हालांकि सानू बहुत मारते सन अपने मास्टर ਜਿਹੜਾ अंग्रेजी वालों तो वैसे ही असी पैदल सी। हाँ जी ते बाकी अलजबरा नहीं सी आंदा या साइंस नहीं सी आंदी, बहुत कुट पैंदी सी, फारसी नहीं सी आंदी, बहुत कुट पैंदी थी। लेकिन ये नहीं कि कदी उन्होंने एहतराम विच फर्क आया। अज भी अल्लाह कुछ ऐसे ने जेड़े इस दुनिया च नहीं रहे, अल्लाह उन्होंने होर एक रहमत करे। कुछ ऐसे ने जेड़े हाली हयात ने ते उन्होंने अज भी उसे अदब और एहतराम नाल मिलेगा जी जी जी। और सो ये बूटा जाने के तो दे होते हाँ उन्होंने फिर बूटा लाया तो वो आज थोड़े सामने जी। तो मैं पढ़े आप तो इस दुनिया च नहीं रहे जी, अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद करे जी, लेकिन उन्होंने लगा है बूटा थोड़े सामने जी जी जी। बड़ा अच्छा बूटा जी खान साहब का। और खान साहब ऑब्वियसली ऑडियंस से अगले हफ्ते ਵਿੱਚ ऑडियंस से क्वेश्चन लाऊंगे जो वो पूछना चाहते हैं। एक मैं गल पूछना चाहता क्योंकि ਤੁਸੀਂ थोड़े जे सियासत टच किया पर जो पाकिस्तान के हालात ने इस वेले और तुसी इमरान खान जी उन्होंने पार्टी के सपोर्टर्स हो तो उसके बारे दसो कि जो भी सानू सुनने को मिलता ऑब्वियसली असी उत्थे तो नहीं पाकिस्तान का फ्यूचर की है और एक आर्टिस्ट के तौर पर एक आर्टिस्ट की कर सकता अपने देश वास्ते। पहली गल तो कि तुसी पार्टी का गल की है तो पार्टी हर बंदा सियासी है जी, हर बंदा एक अंदर दे बंदे दे विच पसंद नापसंद है। तुसी भी अपने लीडर चो किसी को पसंद करते होगे किसी को नहीं करते हो तो इजहार करने तो बाद फिर ये होंगे कि असी एक पार्टी नाल मुंसलिक हो जाते हैं। वरना पहले भी मेरा ताल्लुक सियासत नाल अपने मुल्क नाल उन्ना ही सी जिन्ना अज है। लेकिन मैं इजहार नहीं सी करता। मेरे सामने कोई ऐसा बंदा नहीं सी, मेरे सामने कोई ऐसा लीडर नहीं सी जिहदे वास्ते मैं इस तरह का इजहार करना। सो हुण मैं महसूस किया इस बंदे दे विच कुछ क्वालिटीज हैं ने अल्लाह ताला उहदी मदद करे तो वो साडे मुल्क नूं अच्छा बना सकते। बाकी साडे मुल्क का बहुत अच्छा फ्यूचर है इंशाअल्लाह। हाँ वो रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह। और कौमा थोड़ा बहुत सफर तो कर दिया ना जिथे असी बैठे इन्हों भी बड़ा सफर किया इतने पहुंचने तक इन्हों भी बड़े कष्ट कटने पे ने ते अल्लाह इंशाअल्लाह सानू भी अच्छा लीडर देगा ते असी भी बड़ी कौमां दे विच खलोवांगे इंशाअल्लाह। और खुद आप ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੁਝ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ अगर मौका मिले ਤਾਂ अगर मेरी धरती ਨੂੰ मेरी जरूरत पई तो मैं जरूर लड़ूंगा। मेरे तो अच्छा बंदा अगर मेरे हल्के दे विच है तो उन्होंने मौका देना उन्होंने मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं समझांगा कि मेरे तो बेहतर कोई नहीं तो फिर मैं औखल हो जाऊंगा। एक आर्टिस्ट वास्ते एक जो मेरे तो बेहतर कोई नहीं हो ऑब्वियसली यंग आर्टिस्ट तो इस वाले सुन रहे होंगे दुनिया दे विच ब्रिटिश टीवी जन के अपने अपने आप का कॉन्फिडेंस एक आर्टिस्ट वास्ते होना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी इस वास्ते कि खास तौर पर वो आर्टिस्ट जेडे लाइव से ज्यादा बिलीव करते हैं। अजकल तो ये भी आसानियां पैदा हो गई ना पिछे सीडी चल जाती है अगे लिप सिंगिंग हो जाती लेकिन असी लाइव सिंगर अज भी लाइव गा रहे तो वो वास्ते बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि तुहानू बाज़ औकात 10-10 15-15 20 हज़ार का क्राउड फेस करना पैंदा ते उन्हां सारियां दे ज़हनां नू पढ़ना फिर उन्हां नू मुतमईन करना एक अपनी जगह फुल टाइम जॉब है वो बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये चीज तो मैच्योरिटी दे नाल एक्सपीरियंस या जाहिर है सारे झगड़े ही जिंदगी तक हैं यानी एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो बंदा मैच्योर होता जाएगा पॉलिश होता जाएगा। और तुसी जाने कि ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤ ऑब्वियसली पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और तुसी ऑब्वियसली जो आप समझ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ और अगर वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਡਿਊਟ ਅਸੀਂ ਮੇਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਮੇਬੀ ਪਿਓਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ
सावल तो मेरा जी जी सावल तो मेरा एक ड्यूट आ चुका है। अच्छा हाँ वो एक तो आ चुका है, तो बाकी देखेंगे अगर हालात जरूरत हुई तो जरूर करूँगा। और एक गीत आज हाँ जी क्वेश्चंस आ रहे हैं पर एक गीत हो जाए खान साहब का कोई एनी रिक्वेस्ट है आप तो कोई और रंग पाया थे। हाँ जी Amber Radio. Hi, I'm Preeti from Amber Radio and Aluk Khan song. So I'm so nervous. बीबी मैं अंग्रेजी लंबे था। कोई नहीं मैं बड़ी मोटी ट्रांसलेशन कर दूँगा बस। अच्छा तुम ट्रांसलेट। मुझे इतनी पंजाबी और उर्दू नहीं आती है, but I like. चलें ठीक है आप इन्हें। चलो जी मैं चले बताएंगे मुझे बताएंगे। But I like to say it's not a question as such, but ever since I listened to Tu Nahi To Teriyan Yaadan Se, you really inspired me to want to learn Urdu poetry further with the likes of Mehdi Hassan, Reshma, and I'd like to say it's a very big pleasure to see you in person here today, and thank you for inspiring me to study shairis further and strengthen my knowledge in Urdu and Punjabi. ठीक है लगी समझ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੇ ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ देख लो सर आप कहने बड़े ही सुनते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ देख लो मैं खुशकिस्मत थे और सब तो वड्डी गल है कि उन्होंने मेरे तो बाद मेहदी हसन साहब भी समझ जानते हैं ते गुलाम अली खान साहब भी समझ जानते हैं तो पर शुरुआत ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ क्रेडिट तो मैं जानता है ना नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ क्रेडिट हां पूरा क्रेडिट है हां जी सर बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू चल रहा है आपका बहुत सी बातें आपने जो की हैं और उससे हमें बड़ी खुशी हुई है कि ख़ासकर जिस तरह आपने मौसीकी का आगाज़ किया हालिया पाकिस्तान के जो हालात अभी आप बता रहे थे क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ आपने तहरीक इंसाफ के लिए ज्वाइन करने का एक फ़ैसला किया फिर उनके लिए कुछ संगीत भी तैयार किए क्या वजह थी कि वो इमरान खान साहब आपको इतने इंस्पायर कर गए जबकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ और भी लीडर थे लेकिन खान साहब चूंकि आपके इलाका से तल्लुक़ रखते हैं पेशावर से क्या उसकी वजह ये है या फिर आप वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लीडर साबित हो सकते हैं तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करने की क्या वजूहत पहली बात तो यह है कि इमरान खान का ताल्लुक मियाँ वाली से है पेशावर से नहीं मियाँ वाली चंद के हम एक ही खानदान से हमारा ताल्लुक है न्याजी हैं वो भी मैं भी न्याजी जी खान साहब के साथ मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ जब से शौकत खानम शुरू हुआ और जब उस वक्त तहरीक इंसाफ बनी ही नहीं थी जब से मैं खान साहब के साथ काम कर रहा हूँ खान साहब के साथ मैंने सफ़र किया खान साहब के साथ मैंने खाना खाया खान साहब को मैंने बहुत करीब से देखा और मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं बहुत दयानतदार आदमी है करप्ट नहीं है झूठे नहीं है इसलिए मैंने उनका साथ दिया वरना मैं मेरा सबसे ज़्यादा जो है मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से धरती मेरी जिसे मेरी मुझे माँ की तरह अजीज़ है उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ कुछ भी दे सकता हूँ और मेरा ख्याल है हो सकता है मैं गलत समझता हूँ या मेरी सोच गलत हो लेकिन मेरा दिल कहता है मेरा ईमान कहता है कि वो ज़रूर पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचेगा बेहतर करेगा मैंने एक्चुअली सवाल तो नहीं करना रिक्वेस्ट करना चाहता था दिल लगाया था दिल लगी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था आप कहाँ थे नहीं वो ठेवा था नहीं वो भी वो मैंने सुनाया आप तो नहीं गए थे वेरी गुड ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ I feel good नहीं पर I think ਤੁਸੀਂ शेयर नहीं पहला सुनाया कैसी गलती शबाब कर बैठा दिल मेरा वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो फिर बनता है वो
मैं कुछ ना शोर जिहा लगा सी करन के मैं नहीं सुनिया गीत ਤੁਹਾਡਾ नहीं नहीं बहुत दिल के सोहना। और पाजी आज ਤੁਹਾਡੀ सालगिरह और कुछ मांगो आज जो मांगोगे आपको मिलेगा वो पर जो ये नहीं वो जो ऊँटों कौन सा ऊँठा वाले ऊठा नी उठा वाले टुर जाणगे फिर लपदी फिरेगी हाणी नी ससिए जागदी रही रात अज दी नींद न माणी नी उठा वाले टुर जाणगे मेहरबानी। टुर जाणगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल यह है अताला खान साहब के पिछले साल आप 15 साल चीनों के साथ काम कर रहे हैं और पिछले साल 3 साल मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ। आपका सफर किस तरह रहा उनके साथ? मेरा सफर किस तरह रहा उनके साथ 15 साल के लिए? वो कहते कि मैं 3 मजबूर- साल से वो चीनों के साथ ने और उसके पहले 15 साल आप वो कहते कि उन्होंने तो शायद सफर ना चंगा हो ਤੁਹਾਡਾ सफर किधर रहा चीनों ਦੇ ਨਾਲ मेरा अच्छा रहा, आपका कैसा रहा? नहीं मेरा पुत्र तेरे नाल ज्यादा औखा सी। चीनों ਨੂੰ आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते साड़ी हिम्मत है जैसी ये बात बताई आपने। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕੋਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मिलना बरतना उन लोगों के क्योंकि सिंगर तो सोचता कि मैं तो गीत ही गाना बस मैं गा दूंगा वो दौर दसो कि वो डील करने वास्ते एक इंसान किदां दा होना चाहिए जाने के वक्त ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਐਲਬਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। क्या बात है ਜਿਹੜੇ पूरी दुनिया च अज भी चल रहे हैं जिदा एक गाना है भी है दिल लगाया तो दिल लगी। तो फिर उस वेले पता नहीं होंदा इश्क सी जुनून सी शौक सी कि किसी तरह मैं पब्लिक जावां। रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन वाले अंदर नहीं सन जान देंदे कि आसान तरीका सी कैसेट दा वो कैसेट के हवाले नाल असी रिकॉर्ड हो के बाहर आए तो लोगों ने पसंद किया तो सानू स्टार बना दिता। तो फिर ऐसा ऐसा बंदा एजुकेट होता जाता है अपनी मार्केट का भी पता लगता जाता है। फिर It's a question. take your time make it as long as you want I'm okay I haven't told my wife I'll be home already. I just want to know what's it so young. Ever since I've seen him, he's still the same. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ਼ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਯੰਗ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ। अच्छा अच्छा मेरा ख्याल है नीयत ठीक होवे तो बंदा ठीक रहता है। That's true. That is a true fact. It's a true fact. ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ जी ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ Mashallah. थैंक यू जी thank you। 16 ने सच मैं एक शेर जी। अपने एल्बम का सुनाना एहो जी नसीबां वाले उलझिए डोरे हो जी नसीबां वाले उलझिए डोरे दिल किथे हो रे दिमाग किथे हो रे हो जी नसीबां वाली उलझिए डोरे मिट्टी दिया भावे तू मिट्टी नू न छड़ी वे बुत विचों देस वाली रूह नू न कढ़ी वे ईसा खेल रहवे भावे लंदन लाहौरे दिल किथे हो रे दिमाग किथे हो रे हो जई नसीबां वाली उलझिए डोरे। ठीक है थैंक यू ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰੇਬੀਅਨ ਨਾਈਟਸ ਜੋ ਅੱਜ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆਂ
बहुत खूबसूरत है और मैंने ते साडे होस्ट ने सारा दीदार करवाया, दर्शन करवाए थलों तो सारा माशाल्लाह। साडी ते दुआ है अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां में बाबू। बहुत अच्छा माहौल, बहुत खूबसूरत इंशाल्लाह। We like this bit here. We thought we could have had a little stage here. है ना, इतनी स्टेज थोड़ी जी लग सकती थी, तो फिर याद करो आज जरूर ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। चलो मैं देखूंगा मैं तो आऊंगा। It has been an honor, an absolute pleasure talking to the great Abdullah Khan Sahab, the living legend. Thank you very much to all the British viewers wherever you are in the world. Thank you so much and ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨ ਕਿ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we're all going to sing ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਗਾਈਏ ਲਾਲੀ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तेरी कारी everybody नी सोने फुल्लां वाली भावें वसे तू वलैत असां करनी नहीं रहती तेनू लेके जाए मियां वाली कमीज तेरी कारी नी सोने फुल्लां वाली दिमाग किथे हो रे हो जई नसीबां वाली उलझी रो रे।